हेलो मेरे पढ़ाकू बच्चों। तो आज अपना अपना ज्योमेट्री बॉक्स सबने तैयार कर लिया ना? वेरी गुड। मैंने भी मेरा ज्योमेट्री बॉक्स तैयार कर लिया। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पेन, स्केल, कंपास, शार्पनर, इरेजर, प्रोटेक्टर and the most important, pencil. Correct. So now we start from the first sum, NCERT exercise number 11.1. What is given? Draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio 5:8. So what is the first step? We have to draw a line segment of length 7.6. So here we are taking a point, say AB, A from 1 centimeter to 8.6 centimeter. क्या होता है कि जब हम स्टार्ट जीरो से लेते हैं तो कई बार अपना स्केल ये सही नहीं होता यहाँ से, तो हमेशा क्या करना चाहिए, 1 से लो और 8.6 तक ले लिया तो हो गया 7.6. सो हियर वी राइट द लेंथ इज 7.6 सेंटीमीटर एंड पॉइंट से ए एंड बी. करेक्ट फर्स्ट स्टेप. नाउ सिंस 5 and 8 total is 13, it means we need 13 arcs by taking BAD any acute angle. So here we will take a long line AD, say D. Now we want 13 arcs. Why? Again 5 plus 8 is 13. So starting from point A से start करेंगे और कितने arcs बना देंगे? 13 arcs बना देंगे, सेम एक के बाद एक ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and last 12 और ये 13. We'll write say A1, A2, A3, A4, most important point A5, so mark it A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 and last point A13. Point, important point is 13. So join from point B to A13 using pencil and scale. We want to divide in the ratio 5:8. So again important point is A5. So mark A5 and this is A13. On this point A5 we need the same angle what is here A13. So using compass, जैसे हमने कल पहले लेक्चर में बताया था, सेम एंगल हमको A13 पे बनाना है. तो A13 पे ये मेजर करने के लिए आर्क लिया और उतना का उतना A5 पर भी सेम आर्क ले लिया. बोलो आर्क लिया, पहली स्टेप क्लियर. अब इस आर्क को हम मेजर करेंगे, कंपास को चेंज कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं कि हमको ये लेंथ ऑफ आर्क मिल जाए. ये हमको लेंथ ऑफ आर्क मिल गया, टच करते हैं. सेम आर्क को हम यहाँ से टच करके और यहाँ कट कर देंगे. अब ये एंगल हमको मिल गया. A5 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर दोनों आर्क कट कर रहे हैं वहाँ से थ्रू निकाल देंगे. ये पॉइंट मिल जाएगा मेरे को C. अब चेक करना चाहें तो हम प्रोट्रैक्टर यूज़ करें और इस एंगल को हम मेजर करते हैं एक रफ आइडिया के लिए कि हाँ भाई हमारा सही है कि नहीं. तो ये हमने चेक किया, करीब करीब आ रहा है 22 डिग्री के आसपास. ओके, और अब हम इसको यहाँ पर ले आते हैं A13 पर. ये भी 22 आना चाहिए, इसका मतलब हम सही हैं. ये आ गया अपने पास 22 डिग्री. इसका मतलब हम ये दोनों एंगल को सेम बना चुके हैं. जब ये दोनों सेम एंगल आ गए थीटा एंड थीटा, इट मीन्स दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. और AC is to CB, AC is to CB कितना मिल गया? 5:8. और ये आपका पहला कंस्ट्रक्शन कंप्लीट. इजी. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. Now we'll start question number 2. Construct a triangle of sides 4, 5 and 6. Then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of triangle given. So first we start with taking side AB as 5 centimeter. Now we want 4 and 6. So take a arc of 4 and 6. So first we take a arc of 4
and then an arc of 6. So it is very simple triple S triangle. When all the three sides are given, we'll have a triangle A, B and C. Then we want to reduce it in the scale factor given to you. What is scale factor given? 2/3. 2/3 means first we have to draw any acute angle BAD, your choice, and here 2/3 means 3 parts. So using compass we'll have 3 equal arcs, first, second and third. Join the third part, say A1, A2, A3, join with point B. Now the again important point starts. We want 2/3. It means A2 is very important point. So we have to draw the same angle. What is here? A3 पे जो angle है उतना का उतना हमको बनाना है A2 पर. So how we draw? सबको पता है. अब इस आर्क को हम मेजर कर लेंगे. ये हमने आर्क मेजर किया इतना और इतना का इतना यहाँ पे ये कट किया. अब बताओ A2 से इस दोनों आर्क जहाँ कट कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे. What we are getting? B dash. So this is B dash. Now again, what about the angle A, B and C? So here we have to draw a similar angle same as B on new point B dash. और सेम एंगल बनाना सबको आ ही गया अब तो बहुत अच्छे से. सबसे ज़्यादा वही काम में आ रहा है इसमें. कैसे हम सेम एंगल मेजर, ये मेजर किया, वापस यहाँ पे आए, ये मेजर किया और ये कट किया. अब बताओ ये ज्वाइन किया बी डैश से, दोनों आर्क जहाँ कट कर रहे हैं आगे बढ़ा दिया. दिस पॉइंट इज सी डैश. सो ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश इज द required triangle which is 2/3 of triangle ABC. Easy. Next sum is sum number 4. Sum number 4 is construct an isosceles triangle whose base is 8 cm. So first we start with the base of 8 cm. 1 to 9 ले लेंगे. Say AB base 8 cm. Now we want the altitude of 4 cm. And how we get the altitude? You know, more than half. ये एक्सपांड किया इधर आर्क, इधर दूसरी साइड पॉइंट ए से, वो का वही अपन पीछे करते हैं. सबको पता है, बहुत छोटी क्लासेस से हम करते आ रहे हैं. हाउ वी ड्रॉ द एल्टीट्यूड, हाउ वी ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर, द सेम थिंग. ये हमने राइट बाइसेक्टर बना दिया किसका? ए बी का. ये राइट बाइसेक्टर आ गया ए बी का. अब एल्टीट्यूड कितना चाहिए? 4. तो 4 सेंटीमीटर हम पकड़ लेंगे आर्क, और ये 4 सेंटीमीटर यहाँ तक. ये 4 सेंटीमीटर हम आर्क को जहाँ कट किया, दैट इज द पॉइंट सी. जॉइन ए बी एंड सी, AC and to BC. बोलो ट्राइंगल बनाना तो आसान. ये हमने ट्राइंगल बना लिया, ABC ट्राइंगल. अब क्या बोलता है इसके बाद चलते हैं. एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 1.5. You know 1.5 means 3/2 and 3/2 means 3 is more. 3/2 that is more than 1. More than 1 means we have to enlarge, expand this triangle. And how we expand? See, 2/3. Now it is 3/2. 3/2 means first we have to draw 3 equal arcs at BAD. So 3 equal arcs. How we take 3 equal arcs? 3 हैं इसलिए आराम से बहुत बड़े बड़े ले सकते हैं. हमारे पास बहुत जगह है. ये हमने बड़े बड़े आराम से 3 आर्क ले लिए. अब क्योंकि हमको एक्सपांड करना है, इसका मतलब ये ट्राइंगल ऑलरेडी सेकेंड पार्ट से जुड़ेगा. तो ये हमने ज्वाइन किया इसको सेकेंड पार्ट से. दिस इज A1, A2 एंड A3.
अब जो एंगल A2 पर है उतना का उतना हमको कहाँ बनाना है, A3 पर बनाना है। तो A2 पर कितना एंगल है, कैसे मेजर करेंगे, फिर वही बात, हमको इसको आर्क बनाएंगे और सेम आर्क हम A3 पे बना देंगे। करेक्ट, ये A3 पे बना दिया। अब इस आर्क को मेजर करेंगे क्योंकि एंगल हमको सेम चाहिए। तो देखो वापस वही बात, ये हमने आर्क को मेजर किया, करेक्ट, और इतना का इतना आर्क यहाँ मेजर किया। जहाँ कट किया वहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर देंगे A3 को। A3 से इसको एक्सपांड किया, जहाँ तक आगे जा रहा है आगे ले जाएंगे। इधर AB को एक्सपांड कर देंगे क्योंकि हमको एनलार्ज करना है ट्रायंगल को, बहुत ही सिंपल वे में। ये हमने B को एक्सपांड कर दिया, कहाँ पहुँच गए, B डैश पर। अब जो एंगल ABC है वही हमको कहाँ चाहिए, B डैश पर। तो फिर वापस वही सेम एंगल बनाएंगे, जो ऊपर B का एंगल है, ये आर्क लिया, उतना का उतना बिना मूव किए, कंपास को हिलाना नहीं है, और फिर ये वापस वही आर्क को फिर मेज़र किया। अब आप पेंसिल को एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमको आर्क को मेज़र करना है। ये हमने आर्क मेज़र किया और उतना का उतना आर्क यहाँ कट किया। अब इसको ज्वाइन करेंगे और आगे तक ले जाएंगे जहाँ तक भी जा रहा है। ये पॉइंट B डैश, दोनों आर्क जहाँ कट कर रहे हैं आगे बढ़ गए, ये हम आगे बढ़ गए, और AC जो लाइन थी उस AC लाइन को भी आगे एक्सपांड कर दिया। तो हम कहाँ पहुँच गए, ये हम पहुँच गए C डैश पर। सो AB डैश C डैश, AB डैश C डैश is the required triangle. Which one? 3/2 of triangle ABC. करेक्ट। अब इसमें खास बात क्या चेक करने की है, ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होनी चाहिए और ये दोनों लाइन भी पैरेलल होनी चाहिए। और पैरेलल कैसे चेक करते हैं, प्रोटेक्टर लीजिए, प्रोटेक्टर से ये एंगल मेजर करिए, प्रोटेक्टर से ये एंगल मेजर करिए, ये दोनों एंगल सेम आएंगे। सिमिलरली प्रोटेक्टर से आप ये दोनों एंगल मेजर करिए, ये दोनों एंगल क्या आएंगे, ये दोनों भी सेम आएंगे। करेक्ट, वेरी गुड, इजी। कंस्ट्रक्शन का टॉपिक ऐसा है, मज़ा आता है इसको करने में, आपको लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा सा एक्टिविटी वाला स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं। यस, नाउ द नेक्स्ट सम नंबर 6। इसमें क्या बोलते हैं, ट्राइंगल थोड़ा BC बेस दी हुई है, दो एंगल दिए हुए हैं, एंगल B एंड एंगल A। सी एंगल B दिया है आपको 45 डिग्री और एंगल A दिया है 105। इट मीन्स यू कैन कैलकुलेट एंगल C वेरी इजीली। B और A का टोटल 150, इट मीन्स द एंगल C इक्वल्स टू 30 डिग्री। नाउ द साइड BC is given to you. So first we start from the side BC, that is 7 centimeter. So starting from 1 to 8. BC equals to 7 centimeter. On B we have to draw angle of 45 degree. और angle of 45 degree आप कैसे बनाते हैं, सबको पता है। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, 90, और उसका करना पड़ेगा बाइसेक्टर। करेक्ट, तो ये हम बनाते हैं सबसे पहले 90। आता है ना सबको 90 बनाना। ये क्या बना 60, और 60 के बाद क्या बना 120, और ये ऊपर बन गया 90। सबसे आसान 90। अब जब 90 हमारे पास आ गया तो 90 को हम कर देंगे 50-50। हमको क्या मिल जाएगा, ये तो मिला हमको 90 डिग्री। अब 90 का कर देते हैं हम बाइसेक्टर। ये एंगल 90 का यहाँ से आर्क लिया और ये यहाँ जहाँ कट किया वहाँ से आर्क लिया, ये बन गया 45 डिग्री। तो B से हम इसको एक्सपांड कर देंगे, जहाँ दोनों आर्क कट कर रहे हैं वहाँ से B को ज्वाइन करेंगे, तो ये हमको क्या मिलेगा 45 डिग्री। बताओ 45 डिग्री सबको बनाना आता है। अब 45 डिग्री जब बन गया तो इस B को हम क्या बोलेंगे 45 एंगल। अब C पर कितना एंगल चाहिए 30, फिर भी अपना एक रिवीजन और हो जाएगा। हाउ वी ड्रॉ 30 डिग्री, तो सबसे बेस्ट 30 डिग्री के लिए पहले बनाएंगे हम 60 डिग्री, मगर ध्यान रखना है कि वो इनसाइड आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, 60 इधर बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा 120 बन जाएगा। अब ये आया 60 और 60 का भी हमने कर दिया 50-50, दैट इज 30 डिग्री।
ये बन गया 30 डिग्री। तो सी से ये दोनों आर्क जहाँ कट कर रहे हैं उसको ज्वाइन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा ट्राइंगल ABC। ये मिल गया हमको ट्राइंगल ABC। दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस वन इज 45 डिग्री, सो दिस विल ऑटोमेटिकली 105। नाउ वी वांट टू ड्रॉ अ ट्राइंगल विच वन इज 4/3 एंड 4/3 इज मोर देन 1, करेक्ट। इसका मतलब क्या करेंगे, हम पीछे 4 पार्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले ये हमने बनाए डी लाइन और ये बनाए हमने 4 पार्ट्स। अब तो समझ में आने लग गया। प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी है, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्सपर्ट हो जाएंगे और सबसे आसान टॉपिक कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। ये बन गया हमारा चौथा पार्ट। नाम दे देते हैं AB1, B2, B3, B4। B4 तक हमको एक्सपांड करना है, जबकि है कहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स को हम C से ज्वाइन कर देते हैं B3 को। ये हमने ज्वाइन कर दिया B3। नाउ द सेम एंगल whatever at B3 we have to draw at B4। ये हमने ड्रॉ किया B3 पे और ये हमको ड्रॉ करना है सेम एंगल B4 पे। तो उसी आर्क को हमने आगे बढ़ाया। अब इस आर्क को हम मेजर करेंगे। कैसे मेजर करते हैं, सबको आ गया अब तो एंगल बनाना बढ़िया। ये हमने मेजर किया, ये हमने फिर इसको मेजर किया और ये कट कर दिया। ये आ गया सेम एंगल। B4 से लेकर के एक्सपांड करेंगे, जहाँ भी ज्वाइन हो रहा है ये बहुत शार्प पॉइंट होना चाहिए, कहीं गलती नहीं हो जाए। ये आगे ले गए। अब C को एक्सपांड करेंगे BC को। ये हमने C को B से एक्सपांड कर दिया। ये आ गया हमारे पास C'। अब बताओ क्या करते हैं, कौन सा एंगल लेंगे, ये C वाला सेम एंगल एक बार फिर से लिया। सेम एंगल हमको C' पे बनाना है। बार बार वही चीज़, वही रिवीजन, और फिर हम इसको मेजर कर लेंगे। ये बहुत ध्यान से मेजर करना है ताकि गलती नहीं रह जाए। ये मेजर किया और ये आर्क कट किया, कितना आसान। और ये C' से ज्वाइन करेंगे और ट्रायंगल तैयार। ये आ गया हमारे पास A', कितना बढ़िया दिख रहा है, हैं? और क्या लिखेंगे, ट्रायंगल A'BC' is the required triangle which one 4/3 of triangle ABC, correct? Very good. तो अभी तक हमने क्या सीखा, ट्रायंगल को कैसे छोटा और बड़ा करते हैं। अब हम आते हैं लास्ट आर्टिकल यानी टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है 11.2 का थर्ड सम। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। सो फर्स्ट बीचों बीच हमको क्या बनाना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। तो 3 सेंटीमीटर का हम सर्कल सबको आता है बनाना। ये मैंने 7 से लिया तो मैं 4 तक ले लूँगा। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। सेंटर ले लिया और सेंटर पे अपने ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। ये हो गया अपने पास O इसका सेंटर। अब उन्होंने क्या बोला, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से 7 सेंटीमीटर लेफ्ट और राइट जाना है। तो मैं ये 7 सेंटीमीटर 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं 2 तक चला जाऊँगा। ये आ गया मेरे पास पॉइंट P। और 1 से स्टार्ट करूँगा राइट हैंड साइड के लिए, तो मैं 8 तक चला जाऊँगा। ये 8 तक, ये मेरे को मिल गया Q। बताओ कहाँ तक पहुँच गए। रेडियस 3 सेंटीमीटर का सर्कल, सेंटर O से 7 सेंटीमीटर दूर P और O से राइट साइड में 7 सेंटीमीटर दूर Q। अब हमको क्या करना है, Q से इस पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करने, P से भी इस पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करने। अब टेंजेंट ड्रॉ करने का क्या सिस्टम है हमको मालूम है, यानी इसको भूल जाओ। पहले ये बात करो कि इससे 2 टेंजेंट कैसे बनाते हैं, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 and 2। तो हम बात करते हैं सिर्फ किसकी, राइट हैंड साइड कैसे टेंजेंट बनाते हैं। तो OQ का मेरे को करना है राइट बाइसेक्टर। क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा एक्सपांड करेंगे लेफ्ट और राइट,
दोनों जगह आर्क, वही राइट बाइसेक्टर बनाने का तरीका सबको आता है। ये राइट बाइसेक्टर बना दिया। ज्वाइन करेंगे ताकि मेरे को क्या मिल जाए, एक नया पॉइंट जिसको हम बोलेंगे सेंटर। ये एम आ गया मेरे पास सेंटर। अब इस एम से क्यू तक देखो, एम क्यू भी रेडियस होगा और ओ एम भी रेडियस होगा। ये मैंने घुमा दिया एक सर्कल। ये सर्कल दोनों साइड बहुत ध्यान से आना चाहिए और दोनों क्यू और ओ को बिल्कुल टच करता हुआ निकलना चाहिए। जहाँ दोनों सर्कल कट किए उसको बोलूँगा मैं ए और बी। अब ए से क्यू को ज्वाइन कर दो, एक टेंजेंट बन गया, करेक्ट, ये टेंजेंट बन गया। और बी से, जहाँ दोनों सर्कल कट कर रहे हैं, बी से क्यू को ज्वाइन कर दो तो ये एक और टेंजेंट बन गया। ये तो हो गई जैसी बात जैसा हमने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब बिल्कुल ऐसा कैसा पार्ट अपने आप कर रहे हैं साथ साथ। चलिए अब मेरे को करना है इस ओ पी का राइट बाइसेक्टर। कैसे करेंगे, हाफ से ज़्यादा खोला, वो की वही स्टेप्स रिपीट करनी है। अब मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप चलते रहो। शाबाश, कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ये भी किया, शाबाश। ये बन गया हमारे पास राइट बाइसेक्टर। जैसा हमने राइट हैंड साइड में किया बिल्कुल वैसा का वैसा लेफ्ट हैंड साइड में किया। ये मेरे को मिल गया बाय द वे सेंटर एन। अब एन से लेके पी भी रेडियस होनी चाहिए और एन से ओ भी रेडियस होनी चाहिए, क्योंकि एन कौन है, मिड पॉइंट है। यहाँ से यहाँ चेक कर लो, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, एकदम बढ़िया सर्कल बन रहा है। देखो जहाँ दोनों सर्कल कट करेंगे वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। बस ये पी से ज्वाइन करो, बाय द वे दिस इज सी, दिस इज डी। सी से ज्वाइन करते हैं हम पी को और डी से ज्वाइन करते हैं हम पी को। ये पी सी और पी डी और ये क्यू ए और क्यू बी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है। कितना आसान, बनाने में मजा आता है, लगता है कि हाँ हम कैसे करते ही जाएं। यस, वेरी गुड। अब स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले है रेडियस 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। तो ये मैंने लिया रेडियस 5 और ये लिया मैंने सेंटर ओ। अब इस पे बनाना है मेरे को 5 सेंटीमीटर का सर्कल। ये बनाया अपन ने रेडियस 5 सेंटीमीटर का बढ़िया सा सर्कल। सर्कल तो सभी बढ़िया होते हैं। ये लीजिए, वेरी गुड। अब खास बात है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। इसमें मेरे को बनाना पड़ेगा एक रफ डायग्राम आपको समझाने के लिए। ये सर्कल है और जो दो टेंजेंट बन रहे हैं उन टेंजेंट के बीच का मेरे को एंगल चाहिए 60। अब देखो, ये 90 होता है, ये हमेशा 90 होता है, ये 90 होता है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है, तो बताओ सेंटर का एंगल कितना होगा, सप्लीमेंट्री 120। इट मीन्स सेंटर पे मेरे को 120 का एंगल बनाना है। सेंटर पे पहले 120 बनाऊंगा, उसके बाद ये दोनों एंगल 90 बनाऊंगा, ऑटोमेटिकली दिस एंगल 60 डिग्री। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ एनी वन base. By the way, this one is the base. Say AO and draw on OA 120 degree. And how we draw 120 degree? Very easy. ये हमने आर्क लिया, सबसे पहले बनाते हैं 60 डिग्री। यहाँ पॉइंट से ये बना 60 डिग्री और एक और सेकेंड आर्क लिया तो ये बन गया 120 डिग्री। ये हमको मिल गया 120 डिग्री एट सेंटर। क्या पॉइंट मिल गए, ए ओ बी, एंगल 120। ये देखो यहाँ ए ओ बी 120 मिल गया। अब इस रेडियस पे मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पे भी क्या चाहिए 90 डिग्री। सो एट पॉइंट बी एंड ए वी हैव टू ड्रॉ एंगल 90 डिग्री। तो बी और ए पे हम बनाते हैं आराम से 90 डिग्री। और 90 डिग्री बनाना बहुत ही आसान। ये लिया, ये बना 60, ये एक और ऊपर, ये एक और इधर 120 और 120 से ही यहाँ पर एक और, ये आ गया हमारे पास इजीली 90 डिग्री के आर्क। ज्वाइन करेंगे, आगे तक ले जाएंगे, पता नहीं कहाँ मिलेगा, इसलिए ये बनाया हमने
90 डिग्री, तो यहाँ हम लिख देंगे 90 डिग्री। द सेम प्रोसीजर वी हैव टू रिपीट एट पॉइंट बी। तो बी पे भी ऐसे ही करते हैं, ये लिया, थोड़ा जम के लगाना है इसको यहाँ पर, ये आर्क के इसी पॉइंट से स्टार्ट किया तो ये 60, और एक और पॉइंट से स्टार्ट किया तो 120, ऊपर भी लगाया, और जहाँ आर्क कट किया वहाँ से ये 90 डिग्री। बताओ आसान, किस पॉइंट पे 90 बना रहे हैं? ए और बी पॉइंट पे। ये बी पॉइंट था, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये बनाया हमने 120। बताओ तीनों का टोटल कितना हो गया? अगर तीनों का टोटल 360 से माइनस करें तो नेचुरली ये हमको जो मिला, कितना एंगल मिलेगा? 60। सो पी ए एंड पी बी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स विच आर इंक्लाइन टू एंगल 60 डिग्री। अब अपने को खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करेंगे? हम प्रोटेक्टर उठाएंगे, इसको मेज़र करेंगे, ये हमने इसको मेज़र किया, ये पॉइंट लगाया, और फिक्स 60 डिग्री हमको मिल गया। हैंस आपके 4 में से 4 बोर्ड में। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लगा? रफ डायग्राम बनाना है। अगर आपने रफ डायग्राम पहले बना लिया, आपको पता चल जाएगा। सपोज करो मेरे को ये 60 नहीं दिया होता और बोला होता कि मेरे को 45 चाहिए। अगर ये 45 चाहिए तो यहाँ उसका सप्लीमेंट्री 135 चाहिएगा, करेक्ट। यहाँ अगर मेरे को 80 चाहिए तो यहाँ मेरे को 100 चाहिए, क्योंकि ये दोनों 90 हमेशा फिक्स रहते हैं। वाई? बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो क्या याद रखना है? इन दोनों एंगल का टोटल क्या होगा? 180। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी सेंटर का एंगल दे देंगे कि सेंटर पे 120 बन रहा है, ये नहीं देंगे कि टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री। क्या कहेंगे? सेंटर का एंगल 120 है, 2 टेंजेंट ड्रॉ करो। तो कैसे भी पूछ सकते हैं, हमको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। इसकी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड में ये क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5th 11.2 पेज 221। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले बोल रहे हैं ए बी 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करो। टेकिंग ए एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। टेकिंग बी एज ए सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ए बी। 1 से स्टार्ट किया इसलिए 9 तक पहुंचेंगे। दिस इज ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। लेंथ 8 सेंटीमीटर। टेकिंग ए एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4। अब हमको 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये हमने ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का सर्कल। किस पर? ए पर। बढ़िया क्वेश्चन है, करते हुए आपको लगता है कि हाँ मज़ा आ रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम ही ऐसा है। पता नहीं कुछ बच्चे क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हमेशा बहुत ध्यान से करना है। तो ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने क्या ले लिया? सर्कल ले लिया। अब वो बोलता है बी पर क्या करना है? एंड टेकिंग बी एज ए सेंटर, ए एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एट टेकिंग बी एज ए सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हम इसको कम कर देते हैं, करेक्ट। तो हम 5 से इसको 3 का यानी 2 का बना देते हैं। ये मैंने ले लिया बी से कितने का? 2 का सर्कल ले लिया। अब क्या बोलते हैं? इसको यहां से 2 टेंजेंट डालने हैं और ए से ये 2 टेंजेंट डालने हैं। यानी इस सर्कल के लिए बी इज एक्सटीरियर पॉइंट और इस सर्कल के लिए ए इज एक्सटीरियर पॉइंट। इट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ अनदर सर्कल फ्रॉम taking midpoint, that is right bisector। दोनों साइड से हम राइट बाइसेक्टर लेंगे। फिर से चेक कर लो कहीं हिल तो नहीं गया, करेक्ट। ये राइट बाइसेक्टर आ गया हमारे पास, यानी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी अपन सपोज कर लेते हैं दिस इज नथिंग बट से midpoint means M. Now you have to draw a circle using AM as radius, correct? ये बिल्कुल बढ़िया B को भी काटते हुए निकलेगा, बहुत ही आसान। अब बताओ B से अगर टेंजेंट जा रहा है
तो ये इन दोनों सर्कल को जहाँ कट कर रहा है वो पॉइंट होगा पहला टेंजेंट, यहाँ बी से ये होगा दूसरा टेंजेंट। अब ए से बात करते हैं, तो जहाँ दो सर्कल कट कर रहे हैं ए से ये पॉइंट और ये ए, ये एक और टेंजेंट, और इसी पॉइंट से ये चौथा टेंजेंट। बहुत ही आसान टॉपिक। देखो बी से ये दोनों टेंजेंट नाम दे देते हैं पी क्यू, और ए से ये दो टेंजेंट नाम दे देते हैं एल एम। सो ए एल एंड ए एम आर इक्वल इन लेंथ, बी पी एंड बी क्यू आर इक्वल इन लेंथ। कितना आसान? यस, गुड। अब हम आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्लास 6 से लेकर 10 तक का सारा रिवीजन हो जाएगा। कैसे? देखो सबसे पहले बोलता क्या है, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल इन विच ए बी 6 बी सी 8 एंड एंगल बी 90। इट मीन्स हमको बनाना है एक राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से? बेस से। बेस कितनी लेनी है? 8 सेंटीमीटर। तो हम ये लेते हैं बेस 1 से लेकर के 9 तक की, दैट इज बेस बी सी ऑफ 8 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप, एंगल बी इज गिवन 90 डिग्री। तो बी पर हमको क्या बनाना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री बनाने में तब आप एकदम एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना? हाँ, ये घुमाया, और ये पहला आर्क किसका? 60 का। ये दूसरा आर्क किसका? 120 का। ये बीच में, और ये 120 से एक और 90 का बन गया एंगल। ये 90 का एंगल तैयार। इसका मतलब राइट ट्रायंगल भी तैयार। बी और ए का गैप उन्होंने हमको दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हम इस पर आर्क कट कर देते हैं। ये 6 लिया हमने, ये 6 का मिल गया हमको ए पॉइंट। अब बताओ, ए पता है, बी पता है, सी पता है, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी पता है। तो ये मिल गया हमको ट्राइंगल ए बी सी। ईजी। तो यहाँ तक तो रिवीजन हो गया 6th क्लास का। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 7th और 8th पे आ जाते हैं। बी से हमको इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, और एल्टीट्यूड किसी पॉइंट से किसी लाइन पे ड्रॉ करना हो तो याद करो क्या करना पड़ता है? एक ऐसा आर्क जो 2 जगह कट करे, और वहीं से वापस आर्क आगे, और यहीं से आर्क दूसरे पॉइंट से भी उसी को आगे कट करना चाहिए। तो ये हमको जो पॉइंट मिलेगा, सपोज ई, तो ई से हम ज्वाइन करेंगे किसको? बी को। तो कौन मिल जाएगा हमको? डी पॉइंट, और डी पॉइंट इज परपेंडिकुलर। यस, तो बी डी इज एल्टीट्यूड। अब क्या बोलता है? खास बात, अब 9th क्लास की बात। ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू बी डी सी व्हेन डी इज 90। 9th में आपने पढ़ा है एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इसका मतलब ये बी डी सी पे क्या बनेगा? एक सेमी सर्कल। तो उसके लिए हमको क्या चाहिएगा? मिड पॉइंट ऑफ बेस। और मिड पॉइंट निकालना यानी राइट बाइसेक्टर करके हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। हाफ से ज़्यादा खोला, एक साइड, दूसरी साइड, और सी से वापस इस साइड, और ये इस साइड। क्या मिल गया हमको? दोनों को ज्वाइन करने से मिल जाएगा मिड पॉइंट। ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये हमको मिल गया मिड पॉइंट, दैट इज ओ। अब सर्कल बनाना बहुत आसान, क्योंकि ओ से लेकर के बी तक हमको रेडियस मिल चुकी है। चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे जाएगा, ये डी से गया, ये सी से गया, और ये सर्कल तैयार। लास्ट पॉइंट 10th क्लास का। देन ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम ए। तो देखो ए से बी तो पहले एक टेंजेंट है, वी हैव टू ड्रॉ वन मोर टेंजेंट थ्रू ए। यू नो फ्रॉम द थ्योरम ऑफ टेंजेंट्स दैट 2 टेंजेंट्स ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ए बी एक टेंजेंट है, तो दूसरा ए बी डैश भी उतना ही लेंथ का होगा। सो दिस पॉइंट इज नाउ बी डैश। Join B dash to A will have 2 equal tangents. कौन कौन से equal tangents आ गए? AB dash equals to AB. From A, now we have these 2 tangents. What is required in this question? Easy, मगर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, काफ़ी बार प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की। Okay, now the last question. Now question number 7. Draw a circle with the help of bangle. Take a point outside
द सर्कल कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। कोई भी एक सर्कल, बैंगल से हमको एक सर्कल बनाना है। अब बैंगल तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम ले लेते हैं कप और उस कप से बना देते हैं हम एक सर्कल। एक ही बात है, चाहे बैंगल से बनाओ और चाहे कप से बनाओ। तो ये मैंने कप से एक सर्कल बना दिया जिसका मेरे को कोई सेंटर का अता पता नहीं है। ये मेरे पास सर्कल तैयार हो गया। अब बताओ क्वेश्चन क्या बोलता है। बैंगल से एक सर्कल बना दिया, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड कंस्ट्रक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट्स। सपोज करो मैंने आउटसाइड एक कोई पॉइंट ले लिया P। फ्रॉम दिस पॉइंट P आई वांट टू ड्रॉ टू टेंजेंट्स, मगर सेंटर तो पता ही नहीं। तो सेंटर कैसे निकालेंगे? सेंटर निकालने का 9th क्लास का मेथड, कोई सी भी दो कॉर्ड बना देते हैं हम। कैसी भी दो कॉर्ड बना दी और इन कॉर्ड्स का हम कर देंगे राइट बाइसेक्टर। तो इन दो कॉर्ड्स का हमको करना है राइट बाइसेक्टर। तो क्या करेंगे, ये कॉर्ड से हमने हाफ से ज़्यादा खोला, इस साइड भी आर्क लिया, बहुत बार कर लिया, इसलिए अब तो आप सब परफेक्ट हो चुके हैं। अब तो बस आपका डायरेक्ट टेस्ट लेना है लग रहा है। ये इसका राइट बाइसेक्टर हो गया। ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट से, ये पहला राइट बाइसेक्टर। अब सेम इसी तरीके से इस साइड वाली कॉर्ड का भी हम राइट बाइसेक्टर कर देते हैं। दोनों साइड आर्क बनाएंगे, इस साइड से भी आर्क बनाएंगे और हमको मिल गया ये एक और राइट बाइसेक्टर। जहां दोनों राइट बाइसेक्टर कट करेंगे वो हमको क्या दे देगा, सेंटर। ये 9th क्लास का रिवीजन हो गया, आपका सेंटर आ गया। अब जब सेंटर पता है, P पॉइंट पता है, हाउ वी ड्रॉ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, 2 है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट हाउ वी ड्रॉ द टेंजेंट, ये बन गया OP। OP का करेंगे हम वापस राइट बाइसेक्टर तीसरी बार। ये राइट बाइसेक्टर कैसे करते हैं, अब तो बहुत अच्छी तरह से आ गया है। ये राइट बाइसेक्टर P पॉइंट से और ये बन गया आपका सेंटर। ये इस पॉइंट को अच्छी तरह पकड़ लेंगे और इस पॉइंट को, ये जो सेंटर आया बाय द वे M मिड पॉइंट, इस M से हम ड्रॉ करेंगे सर्कल। कहाँ तक, O तक। ये सर्कल ड्रॉ किया जो ऑटोमेटिकली P से पास होगा। जहाँ दोनों सर्कल कट करेंगे, सपोज पॉइंट A एंड B, P से A को ज्वाइन करो, पहला टेंजेंट, करेक्ट, और P से B को ज्वाइन करो जहाँ दोनों सर्कल कट कर रहे हैं, तो ये बनेगा आपके पास दूसरा टेंजेंट। सो PB एंड PA आर टू इक्वल टेंजेंट्स। कभी कभी क्या बोल देते हैं, मेजर इट। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको मेजर करना है तो ये आप या तो डिवाइडर से मेजर करो और ये अपन सिंपल वे में मेजर करो। तो ये करीब 9 सेंटीमीटर और इधर भी कितना आ जाएगा, ये फिक्स उतना ही आना चाहिए 9 सेंटीमीटर। सो हेयर वी कैन राइट इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। इजी। अब बताओ, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो एक दो क्वेश्चन छूटे हैं वो आपको अपने आप से कंप्लीट करना है, मगर ध्यान रखना है स्किल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज्योमेट्री बॉक्स अपने पास रखना है और अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, गुड। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन का। आगे आगे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर के, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, टेक केयर, गुड बाय।